Hello students, welcome back, and today we are going to take the activities of chapter 5, all the activities that are included in the chapter 5, that is the fundamental unit of life. The fundamental unit of life. First of all, you are having the activity of the onion peel, that you have to stain the onion peel under the safranin or the iodine stain and then visualize it under the compound microscope. Basically, the onion peel activity I am just going to give a recapitulation of the activity and the activity के बेस पे जो भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, either they are subjective, either they are objective. We are going to discuss the conclusions and what is being told in the activity. ठीक है, बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी अनियन पील एक्टिविटी, और वी कैन से अनियन स्केल्स एक्टिविटी. Scale of onion scale activity. First of all, you have to stain the cells that you have scraped out. आप क्या करोगे? You have to take the onion, cut into very thin slice. बहुत ही thin लेना है slice, वरना आपको अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख पाओगे. उसके बाद you have to stain the slice with the help of safranin or iodine solution. स्टेन कौन कौन से यूज हो सकते हैं? सैफ्रनिन एंड आयोडीन सॉल्यूशन. यू हैव टू कीप द सेल मॉइस्ट सो दैट इट डजंट गेट्स डिहाइड्रेटेड. टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, you have to keep the surface of the cell moist. Stain, safranin and iodine use कर सकते हो. You have to keep the cell moist to prevent the dehydration. Then stain देने के बाद आपको क्या करना है? You have to cover up with cover slip, cover with cover slip and visualize under compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद आपको पता चलेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद आपको पता चलेगा दैट द सेल इज हैविंग अ बाउंड्री. यू विल बी एबल टू सी अ बाउंड्री एंड विद अ डार्कली स्टेन्ड सेंट्रल पॉइंट. बिलीव मी स्टूडेंट्स, the structure actually looks identical to this. बिल्कुल ऐसा ही दिखता है. The structure actually looks identical to this. This is the onion peel experiment. अनियन पील एक्सपेरिमेंट आपकी एक्टिविटी 5.1 है एंड दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी. इट टेल्स दैट द सेल हैज अ बाउंड्री दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन. इन दिस केस you are not able to visualize the cell membrane and the cell wall properly because you are visualizing it under the compound microscope. Compound microscope is a simple is a kind of microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं. द फर्स्ट वन इज द आई पीस एंड सेकेंड वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस. यहाँ पे एक स्टेज होता है जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं. स्लाइड इज ऑलवेज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ कवर स्लिप एंड फिर जो लेंस ये हमारी स्लाइड के पास होता है, डार्क लेंस इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव लेंस. जो हमारी आंख के पास होता है, डार्क लेंस इज नोन एज द आई पीस. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज हैविंग टू लेंसेज. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज विजिबल
after doing this activity, so what do you conclude from this activity? Conclusion of this activity is, cell has a outer membrane with highly stained area, dot like structure, and that dot like structure is the nucleus. Most of the part of the cell is empty. Why it is empty? Because that is occurred by the cytoplasm. Most part of the cell is empty. Empty मतलब without stain. Without stain मतलब cytoplasm. We also conclude from this that the boundaries take up the dark stain, boundaries take up the dark stain, and nucleus also takes up the dark stain. Cytoplasm takes the lighter stain. Next activity is about staining different types of cells. Different types of cell. These types of cells are, first kind उन्होंने बोला है कि leaf cell, next kind उन्होंने बोला है that you can stain a root cell, and the third kind is the peel cell. Scale नहीं है, scale is the edible part of the onion, peel है, peel is the non edible part of the onion जो हम remove करके रख देते हैं. Okay? तो इन्होंने बोला है stain different types of cells and visualize it under the microscope. What they want us to conclude from this activity, इस activity का conclusion है all cells have different structure. Structure means shape and size according to the function they have to perform. According to the function they have to perform. जो हमारे ये वाले प्लांट सेल्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन शेप एंड साइज, बट एनिमल सेल्स का नीचे डायग्राम बनाया गया है, उसमें आपको बहुत सारे काइंड्स ऑफ सेल गिवन है, नर्व सेल, फैट सेल, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, एंड देन इट इज़ ऑल्सो नर्व सेल भी गिवन है उसमें. तो ये क्या बताना चाहते हैं, स्पर्म सेल इज ऑल्सो गिवन देयर. तो ये क्या बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि प्लांट सेल है, क्योंकि प्लांट्स का काम इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है कि लीफ सेल है, फोटोसिंथेसाइज करना है, उसका डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर, बट स्टिल दे आर नॉट सो मच डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन शेप एंड साइज, बिकॉज प्लांट सेल के बारे में हमने पढ़ा कि उनकी फिक्स्ड शेप रहती है, ड्यू टू सेल वॉल प्रेजेंस दे आर रिजिड ऑल्सो, and they don't get destroyed due to osmosis because of the presence of the cell wall. But जो animal cells हैं they are far more different from each other in every way. हर organ से, अगर मैं stomach tissue की बात करूँ, stomach cells की बात करूँ, they are very different from the liver cells. हालांकि दोनों का काम क्या होता है, digestive system में दोनों का काम है, फिर भी स्टमक और लिवर सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंट है. वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंट है.
स्पर्म सेल एंड एग सेल एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंस है. वाई डिफरेंट? बिकॉज एनिमल सेल इज अ फार मोर कम्प्लेक्स बॉडी. उन्होंने एक्टिव काम करने होते हैं, उनको डाइजेशन भी करनी होती है, उन्होंने मूवमेंट भी करनी होती है. तो इसके लिए उनको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया गया है. उनका लाइफ प्रोसेस है दैट इज मच मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ प्लांट सेल. इसीलिए एनिमल्स की लाइफ स्पैन जो होती है दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्लांट्स. ओके, नाउ द थर्ड एक्टिविटी is of osmosis. Third activity is the 5.3 activity, deshelling the egg. ये क्या है? डेमो है एक ऑस्मोसिस का. इसमें क्या करना है हमें? Dissolve the shell with the help of dilute HCl, hydrochloric acid. Dissolve the shell that is with dilute hydrochloric acid. HCl means hydrochloric acid. आपको याद रखना है. That is made up of calcium carbonate. The shell is made up of calcium carbonate. ये आपको याद रखना है. Shell is made up of calcium carbonate. The shell is made up of this calcium carbonate. तो आपको क्या करना है? डिसॉल्व करना है शेल विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देन यू हैव टू पुट द सेल इन वाटर, देन इन सॉल्ट सॉल्यूशन. इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है हमारे पास? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी? एंडोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस inside the hypotonic solution and exoosmosis takes place in the hypertonic solution. जो हमारा ये नॉर्मल वाटर है, पहले हमने शेल को क्यों रिमूव किया? क्योंकि शेल है वो ऑस्मोसिस होने नहीं देगा, इसलिए शेल को हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा. दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि शेल को कैसे डिसॉल्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी आर डिसॉल्विंग द शेल. द शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड देन हम जब सेल को या एग को, बेसिकली यहाँ पे एग आना था, जब हम एग को वाटर के अंदर रखेंगे एग सेल को, तो वो क्या कर जाएगा? इट विल स्वेल. स्वेल कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसमें क्या हो रही है? एंडोऑस्मोसिस हो रही है, इसलिए सेल क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा. एंड जब हम इसको सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दैट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोऑस्मोसिस होती है. That is all about the activity of osmosis. एक तो आपकी 5.3 एक्टिविटी है जो एग के बारे में जिसमें बात किया है. नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑफ, नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी दैट इज raisins and apricots. The fourth activity is raisins and apricots. इनका भी बिल्कुल सेम है. जो एग शेल वाला बेसिकली है एक्टिविटी, ये हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होने के बावजूद भी नुकसानदायक है बच्चों के लिए. कई बार स्किन को एलर्जी हो जाती है, स्किन हार्म कर सकती है. सो बच्चों की जो कैपेबिलिटी होती है, हैंडलिंग कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है. सो दैट इज अ रिस्की काइंड ऑफ एक्टिविटी. इसीलिए एक और एक्टिविटी दी है कि अगर ऑस्मोसिस समझनी है तो बहुत ज़्यादा ईजी हमारे पास
और एक एक्टिविटी है रेजिन्स। रेजिन्स क्या होती है? किशमिश, ठीक है, किशमिश ले लो, रेजिन्स, ठीक है। अब दाल भी ले सकते हो, चने भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बट इन द केस ऑफ चने एंड दाल ऑस्मोसिस हो जाएगी, एक्सो ऑस्मोसिस, बट इतने अच्छे से नहीं होगी। कैसे होगी ऑस्मोसिस ये मैं आपको बता देती हूँ। रेजिन्स एंड एप्रिकॉट्स, आपने क्या करनी है, 2 बाउल्स लेने हैं, एक में आपने डालना है वाटर, एक में आपने डालना है सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन। वाटर के अंदर जो रेजिन्स पड़े होंगे और सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो रेजिन्स पड़े होंगे, आफ्टर 3 to 4 आवर्स आप डिफरेंस देखना, ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल स्वेल अप हो जाएंगे। बिकॉज सिंपल वाटर इज हाइपोटोनिक एंड क्या हो गई, एंडोऑस्मोसिस हो गई। एंडोऑस्मोसिस की वजह से क्या हो गई, कॉजेस एंडोऑस्मोसिस, एंड एंडोऑस्मोसिस की वजह से क्या हो गई, सेल की स्वेलिंग होगी, सेल स्वेल अप। इसमें क्या होंगे, इसमें जो रेजिन्स पड़े हैं ना, ये बिल्कुल ही क्या कर जाएंगे, पिचक जाएंगे, बिल्कुल ही ज्यादा श्रिंक हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड इट कॉजेज एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब पानी हमारा सारा बाहर निकल रहा है, एक्सोऑस्मोसिस की वजह से जो सेल है दैट श्रिंक्स, सेल श्रिंक्स। दैट इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजिन्स एंड एप्रिकॉट। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एक्टिविटी में आपसे बात की जा रही है अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फोर्थ एक्टिविटी इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Fourth activity is all about the electron microscope. Find more about the electron microscope. Electron microscope is a kind of microscope used to visualize the detailed structure of the cell. This is our fifth activity. The detailed structure of the सेल। ये लाइट की जगह, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज होती है एज अ सोर्स। इसमें क्या होती है, सोर्स ऑफ विजुअलाइजेशन इज आर इलेक्ट्रॉन्स। Okay, so that was all about the electron microscope. In the sixth activity you are going to have a rheolith, ठीक है। Sixth activity is the activity about the rheolith. We can also call it the rheolith activity. And what does it tells?
it tells up about the plasmolysis. Plasmolysis is a process in which जब प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं तो क्या हो जाता है, सेल, प्लांट सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज हो जाता है, प्लाज्मोलाइज एंड डीप्लाज्मोलाइज भी हो जाता है. Let me tell you the procedure, all over the procedure here. Plasmolysis, shrinkage of the protoplasm. Plasmolysis is shrinkage of the protoplasm of plant cell when it is placed in hypertonic solution. डीप प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? Deplasmolysis means plasmolysed cell comes back to its shape. Plasmolysed cell comes back to its shape when taken out from the hypertonic solution. देखो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से प्लांट्स, देखो पहले तो प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, उनके पास सेल वॉल है, उनको लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं है, और जिसकी वजह से प्लाज्मोलाइज्ड सेल एक प्रॉपर नॉर्मल सेल में डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो सकता है. ये भी एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट सेल इज मोर इन कंपैरिजन टू द एनिमल सेल. इसमें क्या होता है, वी आर हैविंग अ रियोलीफ, वी आर हैविंग अ रियोलीफ एंड उस रियोलीफ के ऊपर हम सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन डालते हैं. दिस इज अ रियोलीफ सेल, वी प्लेस इट ऑन द स्लाइड. हम ये सेल को स्लाइड के ऊपर रख रहे हैं एंड उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन. देन इसके ऊपर हम कवर स्लिप लगा देंगे एंड जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम विजुलाइज करेंगे, व्हेन वी विजुलाइज दिस थिंग, व्हेन वी विजुलाइज दिस थिंग, तो ये हमें क्या दिखता है, वी फाइंड इट कि ये सेल क्या हो गया, प्लाज्मोलाइज हो गया. द सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड. प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, सेल वॉल पानी को बाहर तो निकलने नहीं देती, एक्सॉस्मोसिस तो होने नहीं दे रही है, तो इसी वजह से सारा प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, श्रिंक हो गया एक जगह पे एंड जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज हो गया. एंड जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन को निकाल देंगे वहाँ से तो सेल जो है दोबारा से डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगा एंड नॉर्मल शेप में आ जाएगा. सो दैट इज अबाउट द रियोलीफ एक्टिविटी. एक और बात इन्होंने बोली हुई है, सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, ओके दैट वाज ऑल. एक और बात इन्होंने बोली हुई है दैट ये तो नॉर्मल लीफ हमने ली, नॉर्मल लीफ के ऊपर हमने सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन डाला और उसको विजुअलाइज किया. व्हाट इफ वी बॉयल द रियो लीव्स, बॉइलिंग द लीव्स kills the cells and the cells are destroyed. Cells are destroyed तो no plasmolysis. अगर हमारा सेल है जो पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो गया तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस कहाँ से होगी, कोई प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगी. सो देयर इज नो काइंड ऑफ प्लाज्मोलाइसिस दैट कैन take place inside the cell. Okay, that is the rheoleaf activity.
Now at last we are going to have the cheek cell activity. Last activity is the cheek cell activity. cheek cell क्या कौन से होते हैं? These are the cheeks. cheeks के अंदर से जब हम कोई भी फोर्सेप की हेल्प से सेल्स बाहर निकाल लेते हैं उसको मिथाइलिन ब्लू. यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेन. एक तो हमने किया था सैफ्रन स्टेन, आयोडीन स्टेन एंड द मिथाइलिन blue. This is the stain that we are using in the cheek cells. cheek cells को visualize करने के लिए वैसा सेम प्रोसेस करना है. स्लाइड के ऊपर रखना है, सेल्स को रखना है, स्टेन डालना है उसके ऊपर, देन कवर स्लिप रख देनी है एंड देन माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करना है. जब माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. These are the structures. पेंटागोनल, बेसिकली पेंटागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं चीक्स के. ऐसे से हमें स्ट्रक्चर्स दिखेंगे with a prominent stain in the center. prominent stain in the center. This is what is nucleus. ये बेसिकली एक टाइप का एनिमल प्लांट सेल या एनिमल सेल है जिसमें हम एनिमल सेल को स्टडी करते हैं एंड डिफरेंस देख सकते हैं कि अनियन सेल्स में क्या डिफरेंस था एंड प्लांट एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है. प्लांट सेल में अनियन सेल्स को विजुलाइज किया था तो अनियन सेल्स वर टाइटली पैक्ड. दे वर हैविंग अ प्रॉपर शेप. दे वर compactly arranged in the comparison to the cheek cells. They also had the cell wall. बट चीक सेल्स जो है वो हमें ऐसे दिख रहे हैं. ठीक है. दीज आर द अनियन सेल्स एंड दीज आर द चीक सेल्स. दिस इज द डिफरेंस एंड दीज आर ऑल द एक्टिविटीज दैट वर इंक्लूडेड इन योर चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. मैंने आपको सारी एक्टिविटीज़ कवर करा दी हैं. उसमें हमने क्या किया एंड व्हाट इज़ द कंक्लूजन फॉर दैट. क्या क्वेश्चंस आपको एनटीएससी में एंड बोर्ड्स में आ सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड. दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्लास. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड go below in the description box for the notes. Thank you so much.